Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about the allelic gene interactions. Means we are starting post Mendelism. We have finished Mendelism and pre-Mendelism already. In Mendelism we have discussed about the monohabit cross, dihabit cross and trihabit cross which were performed by the Mendel. So, and we also discuss many concepts like reciprocal cross, test cross, and types of character like qualitative character, quantitative character. So you have all concepts in your mind before the post Mendelism. Okay, so first of all, we are going to discuss about the gene interactions. So firstly, we will discuss the gene interactions, and in the gene interaction, two types of gene interaction is there: allelic gene interaction and non-allelic gene interaction. In allelic gene interaction, we will discuss incomplete dominance, codominance, lethality, and many more. And incomplete dominance, non-allelic gene interactions, we will discuss the supplementary gene interaction and complementary gene interactions, epistasis we will discuss. Okay, but in all of these topic you have to remember mostly some important points, their ratios, their examples, and mostly in incomplete dominance and complete dominance you must have to remember mostly how to approach their crosses. Means how to approach cross, means how incomplete dominance results came in the incomplete dominance, how it is obtained. So you have to focus on that point mostly, but in the non-allelic gene interaction mostly you have to focus on the examples and ratios. So we will discuss in later. Firstly, in this video we will discuss about the allelic gene interactions. Okay, then let's start. First of all, today's topic is gene interaction, allelic gene interaction, non-allelic gene interaction. We will discuss shortly because only definitions there, and mostly incomplete dominance and co-dominance and multiple allelism is mostly today our topic. But lethality, up to lethality, we will discuss. Okay, now we are going to start our lecture from the post-Mendelism. Mendelism means studying of Mendelism started after the rediscovery of Mendel work. When Mendel work rediscovered, 1980 onward Mendel work is rediscovered. So firstly we have to understand about what is gene interactions. Gene interaction is the majority of interactions occurs at the product level, due to which phenotype gets affected but genotype remains same. What I say, due to which phenotype get affected and genotype remains same, मीन्स ऐसा इंटरेक्शन होता है जैसे कि प्रोडक्ट लेवल पे होता है, हमेशा प्रोडक्ट लेवल पे। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे आता है, मीन्स अगर किसी भी फिनोटाइप अफेक्ट हो रहा है मीन्स जीनोटाइप सेम रह रहा है। ठीक है, जीन इंटरेक्शन का पूरी तरह से क्लैरिटी तभी आएगी जब तुम सारे जीन इंटरेक्शन को पढ़ चुके होगे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला डेफिनेशन को पढ़ना, जो मैं भी ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसके बाद उस पढ़ना, तो तुम्हें सारा चीज माइंड मैप में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है मेजॉरिटी ऑफ interactions occurs at product at product level, due to which phenotype gets affected but genotype remains सेम। ओके, राइटिंग थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, जब मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहना। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर का स्लाइड दिखाता हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं वही सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ और उसी सीक्वेंस से बताते जाऊंगा। ठीक है, तो चलो, तो मैं बताया जीन इंटरेक्शंस। जीन इंटरेक्शंस में पहला जीन इंटरेक्शन आता है कौन सा, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं वन जीन इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, वन जीन इंटरेक्शन, या बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन।
मीन्स क्या होता है, बिटवीन, इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिलिल्स ऑफ सेम जीन, मीन्स सेम टाइप्स ऑफ जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो इंट्राजेनिक या एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जीन इंट्रैक्शन इज नोन एज नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शंस, या इसको बोलते हैं टू जीन इंट्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? टू जीन इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। ठीक है भाई, इंटरजेनिक आ रहा है, कभी भी इंटर आता है तो दो चीज अलग अलग होता है ना। ठीक है, मीन्स इंटर, कभी भी इंटर इंट्रा से याद रखो कि हमेशा स्कूल में कंपटीशन, कभी भी कंपटीशन होता है इंटर स्टेट कंपटीशन, मीन्स अलग अलग स्टेट के बीच में कंपटीशन। इंट्रा स्टेट कंपटीशन कभी कभी आता है जो एक ही स्टेट के बीच में होता है। इस तरह से याद रखो। ठीक है, इंटरजेनिक इनहेरिटेड इंटरेक्शन। ठीक है, intergenic, this is the interaction between the two different genes or non-allele genes. This is a non-allelic, and whenever the two genes is come mostly non-allelic genes, means mostly non-allelic gene interaction between the mostly non-allelic genes. ठीक है, तो ये से जनरल सी डेफिनेशन हुई। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एलिलिक जीन का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो, मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, उस सीक्वेंस में पढ़ना, और जैसे जैसे एग्जांपल में बताऊंगा क्रॉस करके बताऊंगा, वो क्रॉस ध्यान से देखना। ठीक है, फिर मैं 4-5 पॉइंट बोलूंगा, तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस ऑन द प्लांट, विच प्लांट? मिराबिलिस jalapa. It is also known as 4 o'clock plant. So in Mirabilis jalapa, we have three colors: red, pink, and white. Means mostly in the cross, we will get red, pink, and white as a phenotype. You know, as a phenotype means external appearance is phenotype. So, and one of the more flower is the flower of antirrhinum majors and a snapdragon and dog flower. So Carl Correns also discovered incomplete dominance on antirrhinum majors and snapdragon, same as dog plant. These three names are same. And one of the examples you have to remember very seriously all the examples. Okay, so first example is the size of the starch grain in the pea, and second example is the feather color in the androgen fall. And now it is also known as monogenetic quantitative inheritance. So it is basically a quantitative inheritance. I already told you about the quantitative inheritance. What is quantitative inheritance? Quantitative inheritance or character, it is dependent on number of dominant allele. Okay, so it is known as quantitative inheritance. Understand? Means depends on the number, which does not depends on the number. I also give examples in the previous video. When we have discussed about, I think, tri-habit clause, in that video I have discussed about the quantitative or qualitative inheritance. So you go through this video, and if you have a doubt, then you can sum up their doubts and you can clear. Okay, so first of all, but one thing is that quantitative inheritance is not according to Mendel. So we are discussing about the post-Mendelism. Understand? Whatever the topic we will discuss in the post-Mendelism are mostly quantitative inheritance. Understand? Are mostly quantitative inheritance. That's all. Now, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। अब देखो, अब मैं क्रॉस कराने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, जो कि ऑब्टेन हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, जो फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा था। ठीक है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा सबसे पहले क्या था? रेड था। कौन कौन सा फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया? रेड एंड व्हाइट फ्लावर। कौन सा? रेड एंड व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया है ना बात। चलो, तो अगर रेड का बात करें तो मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल आर से इसका जीनोटाइप। व्हाइट का बात करूँ, क्योंकि ये व्हाइट क्या है, व्हाइट, रेड और व्हाइट में ये व्हाइट है रेसेसिव कैरेक्टर एंड रेड है डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो डोमिनेंट को कैपिटल आर और रेसेसिव को स्मॉल आर से डिनोट किए। इससे गैमिट आएगा कैपिटल आर, इससे गैमिट आएगा स्मॉल आर, सबको आता है। इसका क्रॉस करेंगे तो फिर क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सेम मेंडल की तरह ही कराता था। देखो, अब यहाँ जो ये F1 जनरेशन आया, ठीक है, अब उसने देखा कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर आया इसमें से, तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इसके
रेड आना चाहिए था, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग F1 में क्या आता है, पेरेंट के जो डोमिनेंट पेरेंट होता है वो कैरेक्टर आता है ना। अरे मेंडल के अकॉर्डिंग तो वही आता है, बट ऐसा आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आया पिंक। क्या आया? पिंक। यहाँ पे आया पिंक, ठीक है। जितने भी फ्लावर थे ऑल आर पिंक, ऑल आर पिंक। ये शॉकिंग रिजल्ट था। क्या था? शॉकिंग रिजल्ट। अब भाई साहब इसने क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराया। क्या? सेल्फिंग। ये पिंक क्यों आया? ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट आई विल डिस्कस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेल्फिंग। सेल्फिंग कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर से, ठीक है। तो चेकर बोर्ड बनाओ। कैसे बनाते हैं चेकर बोर्ड? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो क्रॉसिंग और सेल्फिंग करा रहे हैं, तो सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो बातें तो वैसे ही हो रही है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था, बट जो जीनोटिपिक रेशियो था, जो सॉरी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर जो दिख रहा था वो अफेक्ट हो रहा था, बट जीनोटाइप सेम है। मैंने बोला था कि जीन इंटरेक्शन वही स्टडी होता है जिसमें कि फिनोटाइप फिनोटाइप अफेक्ट होगा, मींस सब में फिनोटाइप अफेक्ट होगा, बट जीनोटाइप वेरी सॉरी सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो जीनोटाइप तो भाई सबका सेम ही रह रहा है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी लेते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी लेते थे, बट इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, बट फिनोटाइप डेविएट हो रहा है। आई बात समझ में? तो दैट्स द पॉइंट ऑफ द जीन इंटरेक्शन। नाउ तो बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटिपिक रेशियो भाई साहब ये आया। अब मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये है रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर तो रेड है, बट कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा? पिंक, ठीक है। ये भी क्या होगा? पिंक, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये क्या होगा? व्हाइट। तो मैं बोलूं कि रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, क्या होगा? 1:2:1। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? टॉल इज टू ड्वार्फ, ठीक है। ये था 3:1, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 डिवाइड हो जा रहा है 2 और 1 में डिवाइड हो जा रहा है। ये टॉल जो है, एक तो टॉल तो आना चाहिए, ठीक है। टॉल के बीच का कोई कैरेक्टर यहाँ आ रहा है, ठीक है। टॉल का बीच का सेमी ड्वार्फ आ सकता है, ठीक है। वो भी तो ड्वार्फ से तो ज्यादा बड़ा होना, उस टाइप का कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा था इस प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेड दिख रहा, पिंक दिख रहा, व्हाइट दिख रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 1:2। इस दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, मीन्स मोनोहाइब्रिड की तरह ही है, ठीक है। बट रेशियो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो सब कुछ रेशियो है। कैपिटल आर, कैपिटल आर का रेशियो, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसमें भी वही लिखते थे ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी। तो रिलेट करते जाना, ठीक है। 1:2:1, ठीक है बात। मीन्स जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2। वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस may be asked in this topic, that genotypic ratio is equal to phenotypic ratio। एक जगह और आया था, मैं बोला था इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में भी जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी होगा, कोडोमिनेंस में भी होगा, आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कैसे क्रॉस हुआ। तो ये जो पिंक आया ना, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण आया। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। In heterozygous condition of F1, dominant allele is not completely dominant over recessive allele, and hence F1 does not resemble any of the parents। कोई भी पेरेंट से रिजेंबल तो करना चाहिए था ना, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, बट नहीं किया यहाँ पे। बट इट इज इन द बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन मीन्स रेड और व्हाइट के बीच का कुछ आया, जिसको बोलते हैं पिंक। मीन्स जो पेरेंट्स थे उसके बीच का कुछ कैरेक्टर अपीयर हुआ F1 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 में दो पेरेंट्स के बीच का कोई कैरेक्टर अपीयर हुआ, इसीलिए कैरेक्टर जो होता है वो बेंडेड फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली कैरेक्टर बेंड किया। मींस डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जीन या जीन प्रोडक्ट, ठीक है, बट इट डिपेंडेंस ऑन व्हाट द फिनोटाइप यू चूज एग्जामिन द जीन्स और जीन प्रोडक्ट। तो डोमिनेंस
जीन यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है कि भाई ये हाँ डोमिनेंट, मैं पिछले लेक्चर में बोला हूँ कि उस पे फिनोटाइप जो हम लोग क्या डिपेंड करता है, मतलब क्या हम लोग चूज कर रहे हैं जीन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, क्या हम लोग फिनोटाइप चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे फ्लावर कलर ले रहे हैं तो भाई साहब कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है, वही का हाइट लेते तो सेम रिजल्ट आता, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या किस तरह के फिनोटाइप हम ले रहे हैं, ठीक है। चलो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव्स आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इनकम्प्लीट आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एंड बट डोमिनेंट फैक्टर इज अनएबल टू, देखो डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर इस समय अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, ठीक है, अपना कैरेक्टर कंप्लीटली नहीं कर पाया, करा तो बट कंप्लीटली नहीं कर पाया, इसीलिए इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन इज फाउंड बिटवीन द डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। तो कहने का इतना मतलब है कि हमने लिया रेड और हमने लिया व्हाइट, इसके बीच का कोई कैरेक्टर यहाँ आ गया पिंक, ठीक है, उसका सेल्फिंग कराया तो रेड पिंक का रेशियो क्या है 1:2:1। तो भाई साहब ये क्रॉस याद होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा पिंक आना चाहिए। अगर किसी भी बोल दे कि कोई भी दो कैरेक्टर दे दे और बोल दे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो तुम्हें हमेशा उसके दोनों को बीच के कैरेक्टर को लाना पड़ेगा क्वेश्चंस में, या कुछ तरह से हिंट दिया रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में सारे का, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आई। अब चलते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। कोडोमिनेंस में क्या होता है, कंडीशन इन विच बोथ एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आधा अधूरा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, आधा वो आधा ये, बट इसमें दोनों एलील अलग अलग तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इसका एग्जांपल याद रखना भाई, कोट कलर इन कैटल्स, सिकल सेल एनीमिया, अगर ये केस हुआ, हेमोग्लोबिन ए एंड हेमोग्लोबिन एस, सिकल सेल सिकल टाइप, ठीक है, एबनॉर्मल, नॉर्मल बट कैरियर, अगर नॉर्मल बट कैरियर केस हो तो वो कोडोमिनेंस काम आएगा, मैं बताऊंगा अगले में, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस मींस कोडोमिनेंस, ए बी इस तरह का जीनोटाइप लिख के आ रहा है तो कोडोमिनेंस आएगा, ठीक है। एमएन ब्लड ग्रुप इस तरह का जीनोटाइप आ रहा है तो कोडोमिनेंस, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इन हेट्रोजाइगस ऑफ एफ1 बोथ एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, दोनों एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस, कंप्लीटली एक्सप्रेस, सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, साइड बाय साइड, ड्यू टू विच एफ1 रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स, एफ1 जो है दोनों के तरफ, दोनों पेरेंट्स की तरफ रिजेंबल करता है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कोट कलर इन कैटल्स। मान लो अगर बी1 ब्लैक को डिनोट करते हैं, बी2 व्हाइट को डिनोट करते हैं, तो ब्लैक जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है तो बी1 लिख दिए, व्हाइट रेसेसिव फॉर्म बी1 बी2 लिख दिए, बी2 ठीक है, ठीक है। तो ये बीच जो ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर आया कोई एक, ठीक है, रोहन कलर जिसको बोलते हैं, रोहन एक होता है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ऐसे करके, ठीक है, उसको बोलते हैं रोहन कलर, ठीक है। इसको इंटरब्रीडिंग कराएं, देखो एनिमल के बीच में करा रहे हैं तो इंटरब्रीडिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो इंटरब्रीडिंग कराया तो बी1 बी2 आया, बी1 बी2 ये आया ब्लैक रोहन रोहन व्हाइट, कुछ देखो इसमें भी क्या है, फिनोटाइप अफेक्ट हो रहा है बट जीनोटाइप सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आएगा, तो फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, है ना बात, ठीक है। तो कोडोमिनेंस में भी यही है। अब चलते हैं मल्टीपल एलिलील। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या पढ़ना है, मल्टीपल एलिलिज्म होता क्या है, ठीक है, नाम से डिनोट करता है एक जीन बहुत सारे एलील, क्या, एक जीन बहुत सारे एलील, मतलब एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल करेगा दो से ज्यादा एलील को, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा ट्रेट हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है, मीन्स दो, मोर देन टू एलील बोल रहा है ना, कंट्रोल बाय टू एलील, इसीलिए दो से ज्यादा ट्रेट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स इट इज द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन टू एलील ऑफ अ जीन, एक जीन का बहुत सारे एलील हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक ये जीन है, इसका एलील है कैपिटल टी, इसका एलील है स्मॉल टी, इसका एलील है टी डैश कुछ, ठीक है। तो ये एक जीन है और इसका ये अलग अलग टाइप के एलील है और ये अलग अलग ट्रेट दे रहे हैं, ठीक है। कैन ओनली बी स्टडीड एट कैन ओनली बी स्टडीड एट पॉपुलेशन लेवल, और इसे पॉपुलेशन लेवल में स्टडी किया जाता है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन, एक तरह का जीन में रिपीटेड म्यूटेशन होता है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन टाइप का कह सकते हो, ठीक है।
In case of the multiple allelism, number of allele in the diploid individual is equal to 2. देखो यहाँ पे एक important point याद रखना कि multiple allele में नंबर ऑफ एलील इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या है, नंबर ऑफ एलील 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एन और एन। गैमिट में क्या होता है, इसका गैमिट बनाओगे तो एन। पॉपुलेशन में क्या होगा, सभी टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, एन भी हो सकता है, कैपिटल एन, कैपिटल स्मॉल एन, स्मॉल एन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात इसमें बोल रहा है। ऑल एलील इज सेड टू बी अ न्यू एलील या मॉडिफाइड एलील ओनली व्हेन इट इज फाउंड इन द एटलीस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 0.1% इसके पॉपुलेशन में शो होना चाहिए, तभी वो न्यू एलील या मॉडिफाइड एलील बोला जा सकता है, ठीक है। मींस उसका एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 0.01, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक है, टोटल पॉसिबल गैमेट इन द मल्टीपल एलील एन इंटू एन प्लस, यहाँ की एन प्लस 1/2 मीन्स जहाँ की एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील, ठीक है। चलो बताओ, एबीओ ब्लड ग्रुप में कितना एलील होता है, 3 एलील से कंट्रोल होता है। वोट कलर इन द रैबिट में कितना एलील से होता है, 4 कलर। तो हम लोग देखते हैं अभी एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किया था भाई साहब, लैंड स्टीनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर फर्स्ट। और ये आई जीन से रेगुलेट होता है, आई जीन मतलब आइसोग्लूटिन, आइसो एग्लूटिनोजन, ठीक है। और ये आई जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। और देखो ये ब्लड ग्रुपिंग क्या, ये ब्लड ग्रुपिंग क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन सरफेस आरबीसी, मींस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप शो करता है, ठीक है। जैसे कि ये 3 एलील शो कर रहा है, जैसे कि पहला एलील है आई ए, दूसरा एलील है आई बी, तीसरा एलील है आई नॉट, ठीक है। ये आप आई लिख सकते हैं इसको। तो ये 3 एलील ये शो करता है, ठीक है। जब आई ए होगा, आई जीन का एक जीन है, दो अलग अलग तरह के एलील शो कर रहे हैं, क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म शो करता है। आई ए क्या है, डोमिनेंट है। आई बी क्या है, डोमिनेंट है। कौन तरह के एंटीजन बनाते हैं, बी एंटीजन, इसीलिए आई के ऊपर क्या लिखते हैं, ए। फॉर्म ए एंटीजन, इसीलिए आई के ऊपर क्या लिखते हैं, ए। कोई तरह का एंटीजन नहीं बनाते, इसीलिए क्या लिखते हैं, आई जीरो, मीन्स ये रेसेसिव है। कोई एंटीजन ही नहीं बना रहा तो क्या होता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, और ऑलवेज नॉन फंक्शनल एंजाइम इज रेसेसिव। वो पॉइंट काम आया नहीं, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, कि नॉन फंक्शनल एंजाइम इज रेसेसिव। चलो बताओ, अब कितने तरह के यहाँ पे फिनोटाइप आ रहे हैं, 4 तरह के फिनोटाइप, और जीनोटाइप 6 तरह के। कैसे, देखो फिनोटाइप ये है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड, 4 तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं। बट जीनोटाइप क्या है, अगर आई ए आएगा तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, आई ए आई नॉट आएगा फिर भी ए ब्लड ग्रुप। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है, एक तरह का जीन आपस में डोमिनेट कर जा रहा है इस दोनों में, तो क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस। बट देखो आई ए आई बी दोनों आपस में डोमिनेट कर रहे हैं, सेम तरह से डोमिनेट कर रहा है, मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप दे रहा है, आई ए बी ब्लड ग्रुप दे रहा है, मीन्स ये क्या है, को डोमिनेंस है, क्या है, को डोमिनेंस है। इस पे एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन क्या है, सरफेस आरबीसी पे जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन शुगर पॉलीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीजन शुगर पॉलीमर। अगर जिस तरह का प्रेजेंट होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप हो तो एंटीजन शुगर पॉलीमर क्या होगा, ए टाइप का होगा, ठीक है। बी टाइप का अगर बी ब्लड ग्रुप में, उसके एंटीबॉडी क्या होता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या होगा, ए एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या हो सकता है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी हो सकता है, ठीक है बात। तो ये वाली बात है, ठीक है। आईओ है तो ये क्या है, तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम डोनेशन का बात करें, ठीक है, ए बी ये सब मैं क्लास 11th में बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैं वीडियो डाल दूंगा एक ब्लड ग्रुपिंग का, अगर तुम्हें हो जरूरत तो कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से ब्लड ग्रुपिंग का मेरे पास है, ठीक है। तो अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। एक बार कमेंट करना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए पहले ये बताओ कि ओ ए को दे सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, मीन्स ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। बट ओ माइनस इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, आर एच नेगेटिव वाला, ठीक है, आर एच नेगेटिव वाला है, ठीक है। और इसमें आर एच एंटीजन पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए बी प्लस आ रहा है। ए बी क्या करता है, सबको दे सकता है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा अगले मतलब वो वाले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अभी याद रखो कि यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी प्लस। हाँ,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछता है, कितना जीन है, एक जीन, कितना एलील है, 3, जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, 6, डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, हाँ अप्लाई हो रहा है भाई यहाँ डोमिनेंस, फिनोटाइप कितने आ रहा है, 4, कोडोमिनेंस भी अप्लाई हो रहा है, मल्टीपल एलिलिज्म भी अप्लाई हो रहा है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का कैरेक्टर आना चाहिए था ना, ये दोनों कैरेक्टर आपस में आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है बात, चलो अब बात करते हैं प्लियोट्रोपिज्म। क्या प्लियोट्रोपिज्म, उसका उल्टा मींस मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट प्लियोट्रोपिज्म होता है। क्या मल्टीपल फिनोटिपिक, जब एक जीन रेगुलेट करेगा एक से ज्यादा कैरेक्टर, अगर एक जीन एक से ज्यादा एलील रेगुलेट करेगा तो मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, अगर एक जीन एक प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन से अलग अलग तरह के कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर मींस प्लायोट्रोपिज्म। ठीक है भाई, ये क्रोमोसोम है अपना, ठीक है, और इस पे एक जीन है, ये जीन अलग अलग तरह के ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी दे रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल है। जैसे कि पाइसेप्स टाइप का एग्जांपल ले, एग्जांपल भी याद रखना भाई यहाँ का। ठीक है, हाँ इसका एग्जांपल क्या था, इसका एबीओ मल्टीपल एलिज्म का दो एग्जांपल याद रखना, कोट कलर इन रैबिट एंड एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, प्लायोट्रोपिज्म को बात करें, प्लायोट्रोपिज्म में एक जीन है, ये एक जीन फ्लावर कलर को रेगुलेट कर रहा है, सीड कोट कलर को रेगुलेट कर रहा है, एंड रेड स्पॉट ऑफ द लीफ एक्सिस को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक जीन है, ये सीड शेप का भी रेगुलेट कर रहा है, साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन को रेगुलेट करता है, सीड से डोमिनेंट स्टार्च ग्रेन रिसेसिव होता है। तो बात समझ में इतनी आनी चाहिए प्लायोट्रोपिज्म में, और एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए क्या, कि एक जीन रेगुलेट करेगा एक से ज्यादा कैरेक्टर और एक तरह के प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं। ठीक है बात, समझा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी 10 मिनट अच्छे से सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इससे क्वेश्चंस एक दो आते हैं। ठीक है, थोड़ी देर की और वीडियो है, तो बताओ। दूसरा एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल की कीटोन्यूरिया सॉरी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशन है। क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशन है। क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशन है। ठीक है, क्या होता है, ये म्यूटेशन है भाई, म्यूटेशन होता है। ठीक है, बट कैसे होता है देखो, उस जीन में म्यूटेशन होता है जो जीन एंजाइम को कोड करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो जीन बनाता है, उस जीन में म्यूटेशन हो रहा है। तो बताओ वो जीन बन पाए, वो जीन एंजाइम बनाएगा नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो वो एंजाइम बनना रुक जाएगा। मींस वो जो प्रोडक्ट जो बना रहा है, उस एंजाइम से जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसके कारण बहुत सारा इफेक्ट आएगा। मींस म्यूटेशन हुआ एक जीन्स में और इफेक्ट ये सारा आ रहा है, अलग अलग ट्रेट का इफेक्ट आ रहा है। मींस एक जीन बहुत सारा इफेक्ट दे रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, प्लायोट्रोपिज्म। आई बात समझ में। चलो अब इसका देखते हैं फिजियोलॉजी के लेवल पे कैसे होता है। देखो, कोई भी जीन में म्यूटेशन हुआ मींस एंड फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फॉर्मेशन क्या बंद हो गया, जिसके कारण जो ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज मींस अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करता है। ठीक है, टायरोसिन में चेंज करा, भाई साहब ये एंजाइम ही नहीं है तो चेंज ही नहीं होगा ना। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये फिनाइल एलानिन अकुमुलेशन हो जाएगा। अब ये अकुमुलेट अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, या तो डीएमिनेशन होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में इसको डीएमिनेट हो जाता है। ठीक है, या इसका अकुमुलेशन हो जाता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अगर ब्रेन में अकुमुलेशन हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, तो इससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन में अकुमुलेशन होने लगा तो स्किन पिगमेंटेशन एंड डिसफंक्शन ऑफ द किडनी, और ये फिनाइलएलानिन होने लगेगा तो अकुमुलेशन होगा तो किडनी का डिसफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, डीएमिनेशन से रिलेटेड है। तो ये एमिनेशन डीएमिनेशन का काम किसका होता है, किडनी का। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि फिनाइलएलानिन जो है, एक जीन के म्यूटेशन के कारण फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा, जिसके कारण अकुमुलेशन ऑफ द फिनाइलएलानिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए अलग अलग कैरेक्टर आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन एरर। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है फिनाइलएलानिन के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में, सिकल सेल अनीमिया। क्या बोलते हैं,
सिकल सेल एनीमिया ये भी एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है बात। चलो बताओ, सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं कुछ डिनोट करता हूँ, ठीक है। अगर HbA होगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर HbS होगा मीन सिकल सेप होगा तो ये क्या होगा, म्यूटेंट फॉर्म होगा। क्या होगा, म्यूटेंट फॉर्म। तो भाई साहब सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोजोमल लिंक्ड, ऑटोजोम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा। मीन सिकल सेल एनीमिया का जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑटोसोम पे लिंक्ड जीन होगा, रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले कि इतना याद रखो कि ये क्या है, हाँ, और ये सेम ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है फिनाइल कीटोन्यूरिया सेम, ठीक है। ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है, ठीक है। कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑस्प्रिंग, और जो ये किससे ट्रांसफर, पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में जा सकता है, ठीक है। व्हेन बोथ आर द कैरियर ऑफ द जीन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जा सकता है भाई, ठीक है। इसलिए रेसेसिव डिसऑर्डर। तो कैसे पता चल रहा है, जीन को देख के कैसे, जीनोटाइप को देख के कैसे पता चलेगा कि ये सिकल सेल एनीमिया करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो बताओ, कैपिटल ए एच बी ए एक नॉर्मल में बताया, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ठीक है। HbA HbS ये नॉर्मल है बट सिकल सेप भी आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिकल सेप आ रहा है। बट ये चीज क्या चाहिए, को डोमिनेंस भाई। ये नॉर्मल वाला भी डोमिनेंट है और सिकल सेप वाला तो क्या बोला, को डोमिनेंस। मीन्स नॉर्मल बट कैरियर, इट इज अ केस ऑफ को डोमिनेंस, बट सिकल सेप में ये अफेक्टेड होगा, ठीक है। एच बी एस अफेक्टेड होगा सिकल सेल में, ठीक है। और इसका जो जीन किस क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होता है, 11 पे, और इट इज रिलेटेड टू द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये कैसे होता है, ये होता है जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड जिसको जी, उसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिन मींस बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, म्यूटेशन का एक टाइप है बेस सब्स्टिट्यूशन, वो होता है, ठीक है। मींस ग्लूटामिक एसिड हट के वैलिन जुड़ जाता है सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन बेस सब्स्टिट्यूशन का ही पॉइंट है, ठीक है। मींस अगर एक जगह पे यू सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, एक जगह पे यू सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मींस एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे एक जीन एक ये ए से यू पे सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले बताओ मुझे कि कौन सा जीन का म्यूटेशन, कहां से, ए यू जी से जी ए सी, ठीक है, और जी टी सी, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, सिकल सेल, ठीक है। ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इसको अगर दूसरे यार क्रोमोसोम के ये पहला एंड हो गया, पहला वाला स्टैंड, ये पहला स्टैंड, दूसरे एंड पे क्या होगा, सी टी सी, और इसके दूसरे एंड पे क्या होगा, सी ए सी, ठीक है। इससे एमआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, जी ए जी, इससे एमआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, जी यू जी, क्या बनेगा, ये हो गया mRNA, ठीक है, mRNA बना। तो बताओ, यही तो ए को हटा के यू आ जा रहा है, ठीक है, ए को हटा के यू आ रहा है, किसके कारण, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के कारण। अब बताओ, अब इसमें बहुत सारे आगे ऐसे कोडॉन होगा जिसके कारण हमें ये सब अमीनो एसिड आ रहा है, वेल आ रहा है, हिस आ रहा है, ठीक है, ल्यूशीन आ रहा है, इसी तरह से आगे आते हैं ग्लू आ रहा है, ठीक है। मींस ये सिक्स पोजीशन, 1 2 3 4 5, ये सिक्स पोजीशन पे है, यहाँ भी ये सिक्स पोजीशन पे है। मींस यहाँ सिक्स पोजीशन पे जी यू जी के जगह पे क्या आता है, वैलिन, इसको क्या बोलते हैं, वैलिन। ये किस अमीनो एसिड को कोड करता है, वैलिन को, और जी ए जी के एसिड को कोड करता है कौन सा अमीनो एसिड को, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा ये क्या बनेगा, HbA पेप्टाइड बनेगा। किस तरह का पेप्टाइड बनेगा, HbA, और इससे जो प्रोटीन बनेगा इससे कौन बनेगा, HbS, अरे यार, HbS पेप्टाइड बनेगा, ठीक है। HbS पेप्टाइड बना तो ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाया, ठीक है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाया। ये क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, ठीक है।
ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाया जिसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। आरबीसी का शेप यहाँ पे आता है, बट यहाँ पे शेप दूसरा आता है। मींस इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्म, तुम्हें पता है ना कि शेप किससे मेंटेन होता है, हीमोग्लोबिन से ही शेप मेंटेन होता है, जो शेप मेंटेन करता है आरबीसी का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, म्यूटेंट हेमोग्लोबिन अब क्या होता है, पॉलीमराइज होने लगता है आपस में। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन आपस में पॉलीमराइजेशन करने लगता है और इस समय ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाता है। ठीक है, एंड लो ऑक्सीजन टेंशन एंड कॉजिंग द, और जो आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। मीन बाई कॉनकेव डिस्क से, बाई कॉनकेव से क्या हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है। सिकल सेल मीन्स इस तरह का हो जाता है। ठीक है, इस तरह का शेप हो जाता है और इसका एक कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर देखो, अगर ये बाई कॉनकेव सिकल सेल हो जाएगा तो आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी डेथ हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी डेथ हो जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस हो जाता है। आरबीसी लो हो जाता है मीन्स अनेमिया हो जाता है। क्या होता है, अनेमिया। और और हार्ड और रिजिड हो जाता है। जब हार्ड और रिजिड हो जाएगा तो इसका सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, पुअर सर्कुलेशन होगा आरबीसी का। फिर एक बात बताओ, ये एक चीज इसमें देखा गया है कि ये मलेरिया मलेरिया रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये मलेरिया रेसिस्टेंट होता है, ये बात समझ में। और इसका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है और अर्ली डेथ होने के कारण 80 से 100 डेज हो जाता है इसका। ठीक है, और अर्ली डेथ होने के कारण इसको बोलते हैं, इसमें जॉन्डिस का कंडीशन आ सकता है, एनीमिया आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कौन से कोडॉन में पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो क्या बोलेंगे, जीएजी। पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद, जीएजी को पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद क्या, कौन सा कोडॉन अपडेट होता है, जीयूजी। और जीयूजी क्या चीज का कोड का, कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, वैलिन को। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट आ सकता है। कौन सा कंडीशंस में हेमोग्लोबिन म्यूटेंट फॉर्म इलोंगेटेड सिकल सेप हो जाता है, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन पॉलीमराइजेशन होता है, मींस बाई कॉन्केव सिकल से। सिकल सेल आरबीसी का एडवांटेज क्या है, मलेरिया रेसिस्टेंट होता है। ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इससे सारे पॉइंट इससे समझ में आई ना। बस तुम्हें एक चीज और याद रखना है कि ये जीनोटाइप का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये सारा चीज यहाँ जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको देखना। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना, मैं जैसे जैसे स्लाइड दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो, अब लास्ट टॉपिक आज का है लिथेलिटी। लिथेलिटी कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना और रेशियो याद रखना। देखो, रेशियो थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े थे ना उससे थोड़ा सा डेविएट करेगा। कोई जीवन में डेविएट कैसे करता है, डेथ होता है तो लिथेलिटी भी उसी टाइप का चीज है कि ड्यू टू द डेथ कॉजिंग जीन, किसके कारण होता है, डेथ कॉजिंग जीन के। मीन्स लीथल जीन को बोलते हैं डेथ कॉजिंग जीन, रिलेटेड टू रेगुलर द कैरेक्टर एंड वायबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोस्टली इन द रेसेसिव होमोजाइगस फॉर्म के केस में होता है। ठीक है, मीन्स कोई भी चीज जो मोस्टली वायबिलिटी को शो करता है, मीन्स लीथल जीन कब बोल सकते हैं, मीन्स कैरेक्टर प्लस वायबिलिटी आ रहा है। ठीक है, कैरेक्टर भी आ रहा है, रेसेसिव होमोजाइगस में मोस्टली डेथ कर जा रहा है। ठीक है, मीन्स कैरेक्टर तो दे रहा है बट डेथ कर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सेमी लिथलिटी। बट कोई कैरेक्टर ही नहीं दे रहा, डायरेक्ट डेथ कर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रू लिथलिटी, जो कि रेयर होता है, बट सेमी लिथलिटी कॉमन है। लिथलिटी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल सिनोनोट। फर्स्ट किसमें था, कोड कलर इन द माइस। देखो, कोड कलर इन द माइस, माइस का जो कोड कलर है वो दो तरह का है, एक येलो एक ब्राउन। येलो को कौन था, डोमिनेंट, ब्राउन था रिसेसिव। तो भाई ये क्या कर रहा था, कंट्रोल द वायबिलिटी ऑफ द माइस, मींस वायबिलिटी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मींस वायबिलिटी ऑफ द माइस, रेसेसिव मींस लीथलिटी, रेसेसिव कंडीशन में ये लीथल जीन शो कर रहा है, मींस कैपिटल वाई। मींस यहाँ पे जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो रेसेसिव कंडीशन में होता है, सॉरी, वो क्या होता है, लीथल होता है। क्या होता है, लीथल। तुम्हें बता दे कि कोई भी जीन तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे बोले कि कोई भी जीन लिथल है, ठीक है, तो मतलब उसको समझ जाओ कि वो डोमिनेंट फॉर्म में उसको मरना है। ठीक है, उसको डोमिनेंट फॉर्म में उसका डेथ होना है। ठीक है बात, मींस होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में उसका डेथ होना है। ठीक है, तो देखो, ये मान लो कि येलो था और ये भी येलो है, ये ब्राउन है ना, सॉरी ये भी येलो है, तो दोनों येलो और येलो, इसके बीच का गैमेट्स ये हुआ, गैमेट्स ये हुआ।
तो इसको जब क्रॉस कराते हैं, तो इसको क्रॉस कराने के बाद ये कैपिटल वाई का डेथ हो जाता है यूट्रस में ड्यू टू ट्रू लिथलिटी। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं आता, ठीक है, कोई कैरेक्टर आने से पहले ही डेथ हो जाता है। मींस हम लोग रेशियो में तो कैपिटल वाई लिखते थे, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसका रेशियो बन के आता है 2:1 फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे इसका रेशियो आएगा, ठीक है। एंड इन प्लांट डिस्कवर्ड बाय इन प्लांट्स में कौन डिस्कवर किया था? ईबॉर। कौन सा प्लांट? स्नैपड्रैगन प्लांट। स्टडी ऑन द लीफ कलर में स्टडी किया था। ह्यूमंस में मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो अ लिथलिटी, लिथल केस बन सकता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में सारा चीज डिस्कस किया है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट्स बनाओ और लिखो, ठीक है। एक बार और देखना वीडियो तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर चीज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है और इतना ही चीज एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो सबको माइंड में फिट करके फिर इसको लेके चलो, ठीक है। तो देखो, आज का टॉपिक था जीन इंटरेक्शंस, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और ये जेनेटिक्स का सीरीज इतना भयंकर होने वाला है, जिस तरह से GOC 1 और GOC 2 का लेक्चर भयंकर हुआ था, ठीक है, उस तरह से ये भी होने वाला है। और अच्छे से सारे वीडियो को देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत का फल तुम लोग दो, ठीक है। चलो, तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई होप you all are well, and have a nice day. Goodbye. Thank you so much.